अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कोई भी फंक्शन जो है उसका एक ग्राफ जो है वो ड्रॉ करते हैं और ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है हम उसके साथ अपनी मेजरमेंट्स जो है वो कंसीडर करते हैं। इट्स द measuring of area under a function plotted on a graph. Numerical integration is the approximate computation of an integral using numerical techniques. कोई भी इंटीग्रल है हमने उसको अप्रोक्सीमेट करना है by applying numerical strategies, by applying numerical techniques, and the numerical computation of an integral is sometimes known as quadrature. और इसको हम क्वाड्रेचर भी बोलते हैं, यानी ऐसी टर्म्स जिसके अंदर आप इंटीग्रल साइन जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे हम डेरिवेटिव के लिए डेरिवेटिव्स का साइन यूज़ करते थे, तो इन केस ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में जो है हमने ग्राफ्स के साथ और फंक्शन जो है उसको अप्रॉक्सीमेट करना है, तो उसमें हम जब इंटीग्रल का साइन यूज़ करेंगे तो उसको हम क्वाड्रेचर भी कहते हैं। Integral calculus, sometimes also known as integration, it's the branch of calculus which deals with the functions to be integrated, यानी जिनको हमने integrate करना है उन functions को हम जिस branch के अंदर calculus की deal करते हैं वो integral calculus है। And integration is the reverse process of differentiation, and it is also known as anti-derivative and inverse of derivative। इंटीग्रेशन को आप एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं या इनवर्स जो है आप फंक्शन वो भी कंसीडर करते हैं। द फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड इज रेफर टू एज इंटीग्रेंड, यानी वो फंक्शन जिसको आपने इंटीग्रेट करना है उसको आप रेफर करते हो एज अ इंटीग्रेंड, वाई द रिजल्ट ऑफ एन इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एन इंटीग्रल, और जो आपका इंटीग्रेशन का रिजल्ट होता है उसको हम इंटीग्रल बोलते हैं। The integral is equivalent to the area under the curve. As you can see, here is the curve of y is equals to f of x, and the area, which is here highlighted with the yellow color, is the integral, and the function y is equals to f of x is the integrand. न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो है ये क्या होता है? टू फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ए डेफिनेट इंटीग्रल इज नाउन एज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रल जो है उसमें आपके पास लिमिट्स होती हैं, आप एक लिमिट के अंदर एक इंटरवल के साथ बाउंड होते हो और उसके साथ ही आपने अपना जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना है। लेट आई इज इक्वल्स टू integral of a approaches to b f of x g of x, where f of x is the integrand, the function which has to be integrated. A is the lower limit of the integration and b is the upper limit of the integration, and these two limits, in between these two limits f of x is approximated. As this is the bounded or limit bound, that's why we term them as the definite integral. Here is the difference between definite and indefinite integral. Definite integral is defined by the limit values of a and b of the independent variables. Independent variables are those which are obviously not depending on the function you are approximating. So a and b are the limit values of the independent variable, whereas indefinite integral, also known as primitive integral, is an integral with no restrictions imposed on its independent variable. Here is a approaches to b, or a integral b f of x d of x is the definite integral because it has limitations of a and b values, whereas f of x d of x integral is primitive integral because it has no limits or no restrictions imposed on it. So this is the basic difference between the definite and indefinite integral. As I have told you that derivation and integration are reverse of each other, are contrast to each other. In the example A, in the figure A, you can see this is the graph, 0 to 12 and 0 to 400. This is sometimes you refer to as simple derivative.
ओके जी, अब यहाँ पर जो है ये डेरिवेटिव में आप ये देख सकते हैं कि ये एक लाइन जो है वो अप्रोच कर रही है, और यहाँ पर जो है वो एक लाइन बिल्कुल जिस तरह से वो अपवर्ड अप्रोच कर रही थी, उसी तरह से इनवर्स डायरेक्शन में वो बैकवर्ड अप्रोच कर रही है। सेम इज़ द केस विद हेयर। अगर वो बैकवर्ड अप्रोच कर रही है तो इंटीग्रेशन में क्या है, वो अपवर्ड अप्रोच करेगी। ठीक है जी। तो ये जो एक बेसिक डिफरेंस है डेरिवेशन और इंटीग्रेशन का, यानी आपका डेटा फ्लो अगर एक डायरेक्शन है, द डेटा फ्लो इज इन वन डायरेक्शन in the derivative, then in the integral that flow of points, that flow of data would be opposite in direction as elaborated by the following figure. So what's the purpose of using numerical integration? We use numerical integration when the function f of x cannot be integrated analytically and we don't have any other solution. From form of the function is not known, we are unaware of the form of the function, यानी हमें इसमें जो है वो फंक्शन की फॉर्म का ही नहीं पता होता कि वो फंक्शन जो है वो सिंपल है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, उसकी जो है वो फॉर्म क्या है, उसकी नेचर क्या है, हम नेचर ऑफ फंक्शन से अननोन होते हैं। और इंटीग्रेंड इज नोन बट डिफिकल्ट टू फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। लेकिन अगर हमें फंक्शन नोन हो लेकिन हम उसका एंटी डेरिवेटिव ना लेना जानते हो, यानी इसका इंटीग्रेशन जो है वो हम उसको इंटीग्रेट ना कर सकें, तो ये जो है एक होता है बेसिक प्रॉब्लम, जिसके लिए हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अप्लाई करते हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के मेथड्स जो हैं, दो मेथड्स हैं, एक है न्यूटन कॉट्स फॉर्मूला और एक है गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला। Newton-Cotes formula employ functional values at equally spaced data points and can be derived by interpolation formulas. इनको आप क्योंकि न्यूटन फार्मूला से हैं तो आप न्यूटन के इंटरपोलेशन फार्मूला से, फॉरवर्ड फार्मूला से आप इसको डिराइव कर सकते हैं, और ये इक्वली स्पेस डाटा पॉइंट्स के लिए यूज़ होता है। एंड गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला जो है ये भी इक्वली स्पेस डाटा पॉइंट्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसमें जो है हम डाटा पॉइंट्स डिटर्मिन करते हैं बाय ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स, यानी हम इसमें जो है इंटरपोलेशन फार्मूलाज यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्ट पॉलिनोमियल्स जो हैं उनसे अपना जो पॉइंट्स है वो गेट करते हैं। न्यूटन कॉट्स फार्मूला जो है, इसमें मज़ीद इनको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास टेक्निक्स या स्ट्रैटेजीज़ हम यूज़ करेंगे, उनमें ये फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज़ हैं। एक आपकी है ट्रेपेजॉइडल रूल, सेकेंड इज सिम्पसन्स मैथड, सिम्पसन्स रूल्स, and Simpson's rule is 1/3 or 3/8, and other is Boole's rules and Weddell's rules. We will use the following three rules in this lecture. So we will see how to derive integration formula based on Newton's forward differences. This is the simple Newton's forward difference formula or derivative formula, as we have studied before, and we will apply the integration here, which is approaches to 0 to p. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर ये स्टेप साइज है हमारा, और उसके साथ हमने डेरिवेटिव में इस फंक्शन को जो है वो डेरिवेटिव के साथ भी डील किया था, हम इसमें अब इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। हम इतना पोर्शन जो है वो एज इट इज़ रखेंगे और इसको एवेल्युएट करेंगे एफ ऑफ पी डी पी, जो कि न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास ये एक इक्वेशन दे रहा है। ठीक है, हमने जस्ट इसको जो है वो एलेबोरेट किया है, इसको मज़ीद हमने एक्सपैंड किया है। अब इसमें जो है हम ये इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन अप्लाई करके जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो ये वाला है, और इसके साथ जो है हमारा स्टेप साइज मल्टीप्लाई हो रहा है। आप चाहें तो इसको अंदर ब्रैकेट को ओपन करके आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हमने सिंपल इंटीग्रेशन जो है वो अप्लाई की है, और अप्लाई करके हमारे पास जो एक इक्वेशन आई है वो ये इक्वेशन है, और इसको हमने यूज़ करना है अपने फर्दर जो रूल्स हैं उसके लिए। ट्रेपेजॉइडल रूल जो है, अगर हम इसको, क्योंकि हमारे ये तमाम रूल्स जो हैं न्यूटन कॉट्स के, ये इसी एक डेरिवेशन के ऊपर, इस एक डेरिवेशन के ऊपर जो है वो बेस करे हैं, इक्वेशन ए जिसको हमने रेफ़र किया है। तो आपने इस इक्वेशन को जो है वो माइंड में रखना है जब आपने बाकी जो टेक्निक्स हैं उनको स्टडी करना है। सो इन केस ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल, इफ़ वी ट्रंकेट दिस इक्वेशन ए आफ्टर द फर्स्ट डेरिवेटिव वी गेट, हमने पहले डेरिवेटिव से जो है
इसको ट्रंकेट कर देना है। ठीक है जी, हमने जस्ट एक डेरिवेटिव जो है वो कंसीडर करना और बाकी हमने जो सीरीज़ है उसको ट्रंकेट कर देना है। तो हमारे पास इस तरह से कुछ जो फॉर्म है इक्वेशन की वो बच जाएगी और इसके ऊपर हमने जो है वो इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। यू कैन यूज़ दिस साइन ऑल्सो एंड यू कैन यूज़ दिस साइन ऑल्सो। ठीक है, आप ब्रैकेट्स भी इंटीग्रेशन के लिए आप जो है वो इंटीग्रल साइन भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक 0 और 1 आप यहाँ पर जो है वो एज के साथ ये भी यूज़ कर सकते हैं और आप ब्रैकेट्स जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं जो कि इसको इंटीग्रेशन को डिनोट करता है। इट्स अप टू यू विच स्ट्रैटेजी यू लाइक, यू कैन यूज़ इट। Anyhow, truncation of the equation A after first order derivative, the equation will reduce to the form of this. For fitting a straight line, we use the limit 0 and 1. हम क्योंकि लिमिट्स जो हैं वो 0 1 की यूज़ करेंगे, इसलिए एक तो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स कंसीडर किए हैं, इसलिए हम 0 से 1 तक की रेंज में रहेंगे। दूसरा ये कि हम जो है वो स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ जो है उसको प्लॉट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें लिमिट्स जो है वो 0 1 रखनी होगी। इन अदर वर्ड्स द इंटीग्रेशन इज ओवर वन इंटरवल। सिर्फ हम एक इंटरवल जो है वो कंसीडर करेंगे इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए। एंड यू कैन सी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। यहाँ पर जो हमने जब इसकी इंटीग्रेशन की है तो ये एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर रही है। ठीक है जी, तो इसमें जो है हमने सिंपल इसलिए इसको यूज़ किया लिमिट्स को 0 1, क्योंकि एक तो ये फर्स्ट ऑर्डर है और दूसरा हमने स्ट्रेट लाइन को जो है वो अप्रॉक्सीमेट करना है। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स डी एक्स आई टी इंटीग्रेशन, और ये टी जो है ये ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए हमने यहाँ पे एक कन्वेंशन के तौर पर यूज़ किया और हम इस इक्वेशन को जो है वो कंसीडर करते हैं और इसमें जो है हमने लिमिट अप्लाई की है 0 1 की। इसको हम इंटीग्रल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आती है वो ये आती है h/2 f0 प्लस f1। इस इक्वेशन को हम ट्रेपेजॉइडल रूल की जो है वो इक्वेशन कंसीडर करेंगे। ये एप्लीकेबल जो है तब होगा जब आपके पास इक्वल नंबर ऑफ इंटरवल्स होंगे और एरर जो है इसमें वो ऑर्डर ऑफ h2 होगा। Accuracy can be improved by increasing the number of intervals and by decreasing the value of h. यानी अगर आप n को इंक्रीज कर दें, n अगर ग्रेटर हो, ठीक है, n को आप इंक्रीज कर दें और h को आप डिक्रीज कर दें तो आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। ठीक है, यानी n और h जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा और जितने नंबर ऑफ स्टेप्स, एज जो है वो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, स्टेप साइज है और ये आपके पास नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं। तो नंबर ऑफ इंटरवल्स और स्टेप साइज जो है उसके दरमियान हम रिलेशन देख रहे हैं। अगर हमने एरर को एलिमिनेट करना और एक्यूरेसी हम ज़्यादा जो है वो डिमांड करते हैं तो हमने क्या करना है कि हमने नंबर ऑफ इंटरवल्स जो हैं उनको इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है वैल्यू ऑफ एज को। इन दिस रूल y ऑफ x इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ x, क्योंकि सिंपल एक जो है वो आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो ये लीनियर फंक्शंस के ऊपर मोस्टली एप्लीकेबल है। इन जनरल ट्रेपेजॉइडल रूल इज लेस एक्यूरेट व्हेन कंपेयर्ड विद द सिम्पसन्स रूल्स। हम सिम्पसन रूल जो है जब उसको स्टडी करेंगे तो आप उसमें इसकी एक्यूरेसी को जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर तरीके से देख सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास, उसमें हम जो है ट्रेपेजॉइडल रूल्स को अप्लाई करेंगे। एक आपको टेबल जो है वो गिवन है साइन फंक्शन का और हमने कंप्यूट करना है इंटीग्रल ऑफ 0.6 एफ ऑफ एक्स डी एक्स बेस्ड ऑन द ट्रेपेजॉइडल रूल एंड दीज आर द डेटा पॉइंट्स। एज द नंबर ऑफ फंक्शनल वैल्यूज इज 7, द नंबर ऑफ इंटरवल्स n इज इक्वल टू 6 एंड h इज इक्वल टू 0.1। हमारे पास इंटरवल्स जो हैं वो 6 होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जो है ये एक इंटरवल, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इस तरह से हमने जो है वो इंटरवल्स को काउंट आउट करना है। और यहाँ पे अगर हम इन इंटरवल्स का डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास एज जो है वो आ जाएगा, यानी स्टेप साइज। तो स्टेप साइज जो है वो इवन है, इक्वली स्पेस्ड इंटरवल्स हैं, तो हमने जो है वो स्टेप साइज एज इक्वल टू 0.1 कंसीडर करना है और उसके ऊपर हमने जो है ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करना है। ट्रेपेजॉइडल रूल की इक्वेशन जो है h/2 f0 प्लस 2 इंटू f1 f2 f3 4 5 and f of 6.
सो 0.1/2 और यहाँ पर आपकी जो भी वैल्यूज़ थी आपने वो सिंपली यहाँ पे मेंशन करनी है फ्रॉम द टेबल और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 0.1745। अब हमने इसमें एरर जो है वो देखना है कि एरर हम किस तरह से अप्रॉक्सीमेट करेंगे। द फॉलोइंग क्वेरी इज यूज टू फाइंड द लोकल एरर व्हेन यूजिंग द ट्रेपेजॉइडल रूल्स और ओवर n इंटरवल्स। अगर आपके पास n नंबर ऑफ इंटरवल्स हों तो उसमें आपने जब एरर जो है वो कंप्यूट करना है तो उसके लिए आपका फॉर्मूला है ई टी इज इक्वल्स टू -n h³/12 एंड f सेकेंड डेरिवेटिव है यहाँ पर, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और यहाँ पर z है। z जो है वो इज इक्वल्स टू द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव, यानी मैक्सिमम नंबर जो है सेकेंड डेरिवेटिव का आपने वो यहाँ पर कंसीडर करना है। a एंड b आर द लिमिट और बाउंड्स। सो यहाँ पर जो है ये पॉइंट आपका ये डिनोट कर रहा है कि ये स्टेप साइज ऑर्डर जो है वो इसका 2 है, ठीक है, यानी ये सेकेंड डेरिवेटिव है, इस वजह से हमने इसको सेकेंड जो है वो डिनोट किया है अपने जो डेरिवेटिव के साथ जो है एरर को कंप्यूट करने के लिए। सो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जब भी हमने ट्रेपेजॉइडल रूल्स का एन इंटरवल्स के ऊपर अपना जो है वो एरर कंप्यूट करना होगा। एरर कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे, हमें एक इंटीग्रल फंक्शन जो है वो गिवन है और हमें इसको जो है एवेल्युएट करना है यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। कंप्यूट द एरर इन द ट्रेपेजॉइडल रूल टेकिंग h इज इक्वल टू 0.25 एंड द एरर बाउंड। ठीक है, हमें हमारे पास यहाँ पर जो है वो फंक्शन एक टोटल टेबल जो है वो गिवन नहीं है, वो हम खुद ही कंस्ट्रक्ट करेंगे और हमें जो स्टेप साइज है वो 0.25 खुद अलॉट किया गया और इसको यूज़ करते हुए हमें अपना एरर जो है वो कंप्यूट करना है। सो सबसे पहले हम एक टेबल जनरेट करेंगे और क्योंकि हमें पता है लिमिट हमारी 1 से 2 तक है तो हमने जो है एक स्टेप साइज खुद कंसीडर करना है। लाइक यहाँ पर जो है वो 0.25 का स्टेप साइज जो है हमने कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, हमने हर एक जो है वो उसका डिफरेंस 0.25 लेंगे और यहाँ पर भी 0.25, इनका भी 0.2 एंड इन दो का भी 0.2। तो हमने इक्वल, क्योंकि हम ट्रेपेजॉइडल रूल यूज़ कर रहे हैं तो हमने इक्वल जो है वो इंटरवल रखना है, इक्वली स्पेस पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे अपने प्लॉट करने हैं। सो 1 से लेके हमने 2 तक की लिमिट के अंदर इस डिफरेंस को कंसीडर करते हुए अपना एक टेबल जनरेट किया और उसमें x की वैल्यूज़ के साथ हमने स्क्वायर रूट का जो फंक्शन है वो अप्लाई करते हुए एक टेबल जो है वो एस्टिमेटेड वो कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने जो है वो ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करना है। आपके पास ये लिमिट है और इसके ऊपर आपने जो है वो ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करना है, f0 + f4 + 2 × f1 + f2 + f3। सो यहाँ पर जो है आप सिंपल इसको जो है आपकी कैलकुलेशंस आ रही हैं, कैलकुलेशंस के साथ आपने प्लस और मल्टीप्लाई करते हुए इसका आंसर जो है वो कंप्यूट कर लेना है विच इज़ 1.2182। अब एरर आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है, एरर को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला आपको गिवन था आपने उसके अंदर जो है वैल्यूज़ अपनी कंप्यूट करनी है और वैल्यूज़ को कंप्यूट करने के लिए आपने क्या करना है, उस फॉर्मूला को मज़ीद जो है वो एक्सपैंड करना है। जब आप एक्सपैंड करेंगे तो आपके पास जो है वो एक इस तरह से फॉर्म आ जाएगी। एरर इक्वेशन को एक्सपैंड करने के बाद आपका एज जो है वो एक आपने b-a यानी एक आपका इंटरवल साइज जो हो जाएगा उसमें आपने जो है इसको कंप्यूट करना है और f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू 1/2, क्योंकि आपके पास स्क्वायर रूट x है तो इसको हम लिख सकते हैं एज x इज इक्वल्स टू 1/2। सो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में आपके पास आ जाएगा -1/2 x इंटू 1/2। सेकेंड डेरिवेटिव में आपके पास जब -1/2 है तो अगेन आपका जो है 1/2 आ जाएगा और 1/2 से जो है वो आपका -1/4 और x की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पर जो आपने लिया है आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे उसका +1/2 आप यहाँ पर भी ऐड करेंगे और इसी तरह से जो है आपने मैक्सिमम वैल्यू लेनी है ऑफ द सेकेंड डेरिवेटिव z -1/4 z -3/2। तो z जो है आपका आपने 1 के ऊपर जब उसकी वैल्यू कंप्यूट की तो वो 0.25 आ रही है, जब आपने 2 के ऊपर कंप्यूट की तो 0.088 आ रही है, ठीक है। तो मिनिमम एरर और मैक्सिमम एरर आपके पास ये दो लिमिट्स थी, ठीक है, 1 और 2, क्योंकि आपके इंटीग्रल फंक्शन था जिसमें आपकी लिमिट एक 1 थी और दूसरी लिमिट आपके पास 2 थी।
तो आपने इन दोनों के ऊपर जो है इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किया है अपने डेरिवेटिव को। सो मिनिमम एरर जो आपने कैलकुलेट करना है, इनके ऊपर आपने अपनी वैल्यूज कंप्यूट करनी है। बी आपका जो ये वाली ऑप्शन जो है ये आपका इज इक्वल्स टू बी है, और ये वाली लिमिट जो है ये आपकी इज इक्वल्स टू ए है, ठीक है। और यहाँ पर आपने सिंपल ये वैल्यूज को पुट करते हुए स्टेप साइज आपको 0.25% में गिवन था, आपने वो यहाँ पर अप्लाई करते हुए अपना आंसर जो है वो कंप्यूट करना है। इसी तरह से मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी आपने अपना आंसर जो है वो कंप्यूट करना है, ठीक है। ये आपकी मैक्स के लिए और ये आपकी मिनिमम वैल्यूज़ के लिए। आपको पता है कि जो वैल्यू नेगेटिव के अंदर, जो वैल्यू नेगेटिव के अंदर जितनी छोटी होती है एक्चुअली वो उतनी ही ग्रेटर होती है। सो 1 इज ग्रेटर इन दिस केस, we will consider maximum as we have minus here, so 1 is greater in this case and 2 is smaller, so we will use minimum with the function of 2 and maximum error के लिए हमने जो आपके 1 का फंक्शन था वो 0.25 की वैल्यू को अप्लाई करते हुए हमने उसकी वैल्यूज जो है वो कंप्यूट की है, और हमारे पास अब ये दो बाउंड्स आ गए हैं और इसके दरमियान जो है हमारा एरर है, यानी मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, दीज टू आर द बाउंड्स, और इनके दरमियान जो हमें अपना एरर कंप्यूट करना है। सो इस तरह से जो है हम ट्रेपेजॉइडल रूल के अंदर एरर को अप्रॉक्सीमेट करते हैं।